पार्ट बी के यूनिट सेकंड का ये वीडियो है। यही सब पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर, इन हाउ मेनी पार्ट्स स्पीच साउंड्स कैन बी क्लासिफाइड। इसका आंसर होगा स्पीच साउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वोवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, poor vowel sounds in English are known as monophthongs. Question number 4, what do you mean by diphthong? आंसर होगा इसका diphthong is a combination of two vowel sounds. दो vowel sounds के combination को diphthong बोलते हैं। Question number 5, what is a consonant cluster? इसका आंसर होगा इन ए कॉन्सोनेंट क्लस्टर टू कॉन्सोनेंट्स गिव ओनली वन साउंड। जब दो कॉन्सोनेंट एक ही साउंड देते हैं तो उसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए कॉन्सोनेंट बिकम्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा ए कॉन्सोनेंट बिकम्स कंप्लीट ओनली व्हेन इट हैज ए वोवेल विद इन। क्वेश्चन नंबर 7, what do gesticulation and facial blandishment convey? इसका आंसर होगा they convey meaning. Question number 8, what are the main feature of modal recitation? Modal recitation should have correct approximation, rhymes, stress, intonation and modulation. Question number 9, what care should be taken while we teach in children's language? Children's language should have spelling, grammar and expression. जो children's की language होती है वो रखती है क्या? spelling, grammar and expression. Question number 10, what do you mean by phrase? Phrase is a group of two or more than two words. Question number 11 very important दोस्तों, how does Dr. Sweet define grammar? According to this definition, grammar is a practical analysis of a language, its anatomy. Question number 12, what is the main quality of characteristic of a modal? A modal has no s or es with it. Question number 13, what is meant by connector? What is meant by connector? 2018 में आया क्वेश्चन है ये। A connector joins two nouns and clauses in a sentences. Question number 14, what is the characteristic of passive form of pronouns? It taken a noun with it. It taken a noun with it. Question number 15, what is the difference between this and that? This और that में difference क्या है? This is used for nearer objects and that is used for far away objects. मतलब पास में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए तो दिस यूज करेंगे और दूर जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसके लिए दैट यूज करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं इस क्वेश्चन के। व्हाट आर एम्पटी सब्जेक्ट्स? व्हाट आर एम्पटी सब्जेक्ट्स? डिजाइन टू एक्टिविटीज फॉर ईच एम्पटी सब्जेक्ट। अथवा में explain to importance of it and there as empty subjects. The two activities for each empty subject. Empty subject it there as empty subjects. दो empty subjects हैं it और there. इसका आंसर होगा the word it is an industry word to explain situation. It is used to start a sentence. Use of it for telling time.
इट का यूज करेंगे क्या, टाइम बताने के लिए। द यूज ऑफ ए क्लॉक इज़ वेरी नेसेसरी टू टीच इट। शो ए बिग पिक्चर of a clock or draw it on the blackboard. Now draw time on it and ask the questions such as, ये डायग्राम बना लेंगे हम ऐसे और ऐसे ऐसे टाइम को दर्शाएंगे इसमें। टीचर टीचर पूछता है व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या हुआ है अभी। तो स्टूडेंट क्या कहेगा, स्टूडेंट इट इज़ 6 o'clock एक्सेट्रा, है ना, ऐसे बताता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम चेंज होता जाएगा, सही ना। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी repeated asking for different time also because the word it for time. Similarly it the morning, this is every. It for weather, the word is it is also used for weather. एग्जाम्पल होंगे इट इज़ नॉट, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ क्लाउडली, इट इज़ हनी, इट इज़ एरी। यूज ऑफ देयर, देयर का यूज देखेंगे। द वर्ड देयर इज एन इंडस्ट्री वर्ड टू एक्सप्लेन सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो देयर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 बुक्स इन माई बैग, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, देयर आर 2 pockets of biscuits. सो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग, अच्छे लेखन की क्या विशेषताएं हैं। हैंड राइटिंग के बारे में जो है वो लिखना है हमें कि हैंड राइटिंग की क्या विशेषताएं होती हैं। अकॉर्डिंग टू SSM Gardner, writing has a instrumental value in school. Writing helps pupil in organizing and expressing his ideas for thoughts. Handwriting is a regular feature of the pupil's day-to-day work. Good handwriting has its own importance. The qualities of good handwriting are the writing should be legible, इसका सेकंड है। The must be neat and clean, इसका थर्ड ऑप्शन। It must be pleasing to the eye, चौथा पॉइंट है इसका। Letters should be written in simply bold and clear script, पांचवा पॉइंट। देयर शुड बी यूनिफॉर्मली इन द साइज ऑफ द लेटर्स, वर्ड्स शुड नॉट बी क्राउड टू क्लोजली टुगेदर, देयर शुड बी प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइन्स। आठवां इसका, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट विथ नॉर्मल स्पीड। नौवा है द लेटर्स शुड रन स्ट्रेंथ ऑल थॉट। दसवा है द लेटर्स शुड बी टेक्ड स्लेली फॉरवर्ड। सुलेख की विशेषताएं हिंदी में देख लेते हैं अब इसको। पठनीय होना चाहिए, साफ सुथरा हो, तीसरा आकर्षक हो, चौथा वर्णों में सादगी, उचित आकार और स्पष्टता हो, पांचवा है एकरूपता हो, शब्दों में भिड़वा ना लिखें, शब्दों और पंक्तियों के बीच फासला रखें, औसत गति से लिखें, लाइनें सीधी हों, वर्णों को आगे की ओर झुकाएं। इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों 2015 का DLED 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो वोवेल साउंड्स के बारे में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू P. Chirothofessen, vowel sound can be defined as under. Vowels are the voiced sounds in the
production of which there is no obstruction of the air passage. Consonant sounds according to P. Christopherson. A consonant may be defined as a sound in which the movement of the air from the lungs is obstructed as a result of a narrowing, a complete closure of the air passage. Question number 13. Write two examples of transitive verb and two examples of transitive verb. शकर्मक एवं अकर्मक क्रिया के दो दो उदाहरण लिखिए. इसका आंसर होगा एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, सी रीड ए बुक, द बॉयज प्ले क्रिकेट. एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्टिव वर्ब, बर्ड्स फ्लाई, रिवर फ्लोज, है ना. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड आउट द ट्रांसलेटिव एंड इंस्ट्रक्टिव इन द फॉलोइंग लाइन्स. पंक्तियों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया को बताना है इनमें. फर्स्ट, आई वॉकड द पार्क टुडे. आई वॉक टू द पार्क टुडे, इसमें इंस्ट्रक्टिव. और दूसरा है द सिंगर सैंग ब्यूटिफुली यस्टरडे, इसमें भी इंस्ट्रक्टिव अकर्मक है इसमें भी. और सी है द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन ए रिकॉर्ड टाइम, इसमें ट्रांसलेटिव. चौथा है द एथलीट क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 100 मीटर्स रेस, इसमें ट्रांसलेटिव. क्वेश्चन नंबर 15. राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज वर्ड्स. निम्नलिखित शब्दों को ध्वनि में बदलिए. ए है पेन, पेन को पेन ही कहेंगे. टी, टी. थिन, इन. सिट, सिट. क्वेश्चन नंबर 16. यूज द फॉलोइंग वर्ड इन नाउन, ऑब्जेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब. वर्ड फेयर. फेयर जो वर्ड है, फेयर का मतलब होता है मेला. और निम्नलिखित शब्द का संज्ञा विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करो. शब्द मेला है, फेयर इज इक्वल टू मेला. इसका आंसर होगा नाउन के रूप में यूज करेंगे तो वी गो टू विजिट दशहरा फेयर एवरी ईयर. और सेकंड एडजेक्टिव के रूप में आई बिलीव इन फेयर मीन्स एंड फेयर प्ले. तीसरा एडवर्ब के रूप में हरी राइट्स क्वेट फेयरी. क्वेश्चन नंबर 16. राइट कॉम्पिटिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. निम्नलिखित विशेषणों की तुलनात्मक एवं सर्वोच्च डिग्री लिखो. फास्ट, यूजफुल, बैड. फास्ट का कॉम्पिटिटिव डिग्री फास्टर, सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट. यूजफुल का मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल. बैड का रोश, रोस्ट. 18 क्वेश्चन. से वेदर द फॉलोइंग अंडरस्टैंड डिग्रीज ऑफ सब्जेक्टिव आर इन द पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज. निम्न वाक्यों में विशेषण और की पॉजिटिव, तुलनात्मक और सर्वोच्च डिग्रियां बताइए. आई हैव नॉट हेard टू लेटेस्ट न्यूज, इसमें होगा सुपरलेटिव डिग्री. दूसरा है गोपाल इज नॉट एज ओल्ड एज आई एम, यह है पॉजिटिव डिग्री. तीसरा है ही थिंक्स ही इज वाइजर देन हिज फादर, यह है कॉम्पैरेटिव डिग्री. क्वेश्चन नंबर 19. यूज द फॉलोइंग वर्ड इन नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. राउंड के बारे में बताना है. नाउन के रूप में द प्रिंसिपल नेवर नेग्लेक्ट्स हिज डेली राउंड ऑफ ड्यूटी,
verb Vasco da Gama was the first to round the Cape of Good Hope. एडजेक्टिव के रूप में A square peg is fixed in a round roll. Adverb The aeroplane flew round and round. Question number 20. Complete the following sentences using the present correct forms of the verbs given in the bracket. इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीता इज लुकिंग एवरीवेयर बट सी कैन नॉट फाइंड हर आइज. सीता चारों तरफ देख रही थी और उस अपनी कीज है जो नहीं मिली उसे. सी, अब लॉस्ट देम की जगह क्या आएगा? सी हैज़ लॉस्ट देम. सेंटेंसेज पहचानने हैं हमें, टेंस का जो है पूरा पूरा प्रयोग हुआ इसमें. क्वेश्चन नंबर 2, प्रवीण वेट्स ओनली 50 kilos. Last month he weighted 60 kilos. He be on diet. He was on a diet. क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञा किसे कहते हैं? इसके विविधों को स्पष्ट कीजिए. नेमिंग वर्ड्स द नाउन. A noun is the name of a person, place or thing. For example, Mohan, Delhi, cat, mango, river, city, honesty, etc., etc., etc. According to the kinds of nouns: proper noun, common noun, collective noun, material noun और abstract noun. 5 टाइप्स की होती है नाउन. इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा, सरस्वती, हवा महल, जयपुर, राजस्थान पत्रिका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकंड है कॉमन नाउन. इज द नेम गिव्स टू ए क्लास ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, काउ, बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी, टेबल, हाउस, एक्सेट्रा. तीसरा है कलेक्टिव नाउन. denotes several persons or things donated at one group. For example, team, class, army, bundle, etc. Material noun. Material noun में क्या होगा? Is the name of a matter or substance of which the things are made. For example, gold, glass, paper, wood, silver, cotton, silk, etc. पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इज नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, honesty, truth, bravery, wisdom are the example of quality. Childhood, youth, sleep, death are the examples of state. Judgment, pleasure, wealth, anger are the examples of action.